हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गुड वाइज विद HAR के। आज मैं आया हूँ AI समिट 2026 जो कि लगा है प्रगति मैदान भारत मंडपम में। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के रोबोट AI टेक्नोलॉजीज़, इंडिया के AI टेक्नोलॉजीज़ सारी की सारी एक ही जगह पे लगी हुई है। ये स्टार्ट करता हूँ मैं ये वीडियो, और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा ताकि आप मेरे और भी वीडियो देख सकें। मैंने गेट नंबर 10 से एंट्री करी है जो कि मेट्रो स्टेशन के पास है। आप चाहें तो गेट नंबर 4 से भी जा सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपको एक QR कोड मिलेगा। काफ़ी सिक्योरिटी भी है यहाँ पर। इस AI समिट में एंटर कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं AI समिट की काफ़ी रश हो रहा है और बहुत लंबी लाइन क्यू में लगने के बाद मैं यहाँ पे एंटर कर चुका हूँ। जगह जगह पे होर्डिंग्स लगे हुए हैं AI समिट के। मोदी जी की फ़ोटो लगी हुई है। अब मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे व्हीकल है जो कि हमें हॉल नंबर 14, 1, 2, 3 में छोड़ सकता है। ये बिल्कुल फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं हॉल नंबर 14 के अंदर जा रहा हूँ सबसे पहले। इस हॉल के अंदर मुझे अलग अलग कंट्रीज़ के पवेलियन देखने को, और यहाँ पे काफ़ी इक्विपमेंट्स AI टेक्नोलॉजीज़ को जानने का मौका मिला। पवेलियन के अंदर अलग अलग कंपनियों ने AI का सेमिनार रखा हुआ है। सेक्शन में AI रिलेटेड कैमरेज के बारे में बताया गया है जो कि सेंसर के थ्रू पूरे डिटेक्ट कर लेगा कि वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है घर के अंदर, और क्या क्या एरिया सर्कल्स में कितने मेंबर्स हैं। ये फ्रांस का सेक्शन है जहाँ पे ट्रैक्टर रखा हुआ है AI रिलेटेड, और ये बता रहे हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। We can also, with camera, we can detect diseases on the crops. We can detect biomass, missing plants, and we have implements in the that can not here, but we made an implement that can detect weeds and spray to these weeds. What is this? Could you tell me about the hot shots? Yeah, so basically this is a AI powered photography. What we do is we capture the live photos of a person, just like this. We'll capture your photo. Okay. We'll capture your based on the set templates that we have. So we have got 4 templates right here. With one is the Spark Mandapam theme. This template is particularly a fusion between the French architecture and the Indian architecture with the modern world. Okay. This is a AI caricature. Yes. It is a bit cartoonish design. Yes. And this is a general magazine cover kind of template. Okay. It's a very generic template. So we created these templates and we are using Nano Banana. We have integrated Nano Banana in our software so that it generates the AI based photos. So we use the eyes as the anchor point. You have to look here in the camera and then it will create a photo of you like this. भारत पवेलियन है जहाँ पे AI रिलेटेड इंडिया के स्टार्टअप्स कंपनी यहाँ पे शोकेस कर रही हैं। इस जगह पे मैम बता रही हैं कि AI एजुकेशन में कैसे हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे टीचर्स और प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स भी आ रहे हैं ये जानने के लिए कि उनको किस तरह से हेल्प हो सकती है AI के थ्रू। न्यूज़ में मैंने देखा था कि जैसे इसमें 9 to 10 मंथ्स लग जाते हैं कंप्लीट बनने में, और यहाँ पे 2 to 3 डेज़ लगते हैं टोटल इसको डिज़ाइन को कंप्लीट होने में। तो इट इज़ ट्रू। ये AI मशीन है जिससे हैंडमेड डिज़ाइन जनरेट हो जाता है। We are not replacing the Manpower. Yes. handmade sari. Weavers will be there. We are trying to assist them. Okay. Assistant. Assist them. So we need assistance for them. Okay. Where it will show the color when design goes right, which color and which direction we wanted to pass it. Okay. So
We are just empowering the weavers community. We are not trying to replace them. Only the design you creating from AI, Yeah, exactly. and rest of the And things rest of doing by the yeah. manual. Okay, thank you. So on the left side there are manuscripts. Slowly move towards the right of the sculpture and please tell me what do you see on the right side. Please move towards the right. Motherboard pieces on the right side. So this whole sculpture is basically built upon the concept of how Gyan Bharatam works. Gyan Bharatam is a national mission which was started by our Prime Minister last year, and it works on how AI is being used to translate all these manuscripts into digital repositories and digitize them. So everybody can have the knowledge कि क्या है in manuscripts से सबको उस चीज़ की knowledge मिल रहा है. Not even on a national level, it is based on global level. And Gyan Bharatam has a website and an application which is available for everybody. And more than 1 lakh manuscripts are already available for people to access. And on my right side, there are original manuscripts that are showcased here and inside the exhibition also. Gyan Bharatam has हज़ारों साल website, पुरानी application, मेन्यू स्क्रिप्ट है जो and कि all लिखी that. गई है किसी इंसान के द्वारा, और अब इसको कन्वर्ट करके इसको डिजिटलाइज सेव किया जा रहा है इसे को देखेंगे तो इसके राइट साइड में मदरबोर्ड की चिप्स वगैरह बोर्ड हैं पूरे ये, और इसके लेफ़्ट साइड में मेन्यू स्क्रिप्ट है, पूरा आर्किटेक्चर बनाया हुआ है उसी से। कुछ लोग एआई समिट क्रिएटर्स की तरफ से आए थे और अलग अलग सेक्शंस में स्टॉल्स में जाके उनके बारे में डिटेल्स ले रहे थे कि वो किस तरह से क्या चीज़ें डिस्प्ले करा रहे हैं। यह एआई रिलेटेड एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको बताएगा कि आप चाणक्य हैं या कोई बुद्धिमान व्यक्ति, तो आपकी फ़ोटो क्लिक करेगा और डिटेल्स लेगा और आपको आपके बारे में बता देगा। ये विद इन सेकेंड्स आपके लिए फ़ोटो जनरेट करके देगा। ये बना दिया तुमने कैमरामैन मुझे ये रेड मैंने भी इसको ट्राई किया और जब मैंने इसको जनरेट किया तो मेरा आया चाणक्य। जब फ़ोटो डिस्प्ले आ जाए तो क्यूआर कोड को स्कैन करके फ़ोटो डाउनलोड करनी होती है। यहाँ पे ज्ञान दर्शन के अंदर काफ़ी पुरानी मेन्यू स्क्रिप्ट रखी हुई हैं, हज़ारों साल जो पुरानी हैं, उनकी डिटेल्स आप देखेंगे जूम करके यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी जूम मैंने किया है। सारी की सारी मेन्यू स्क्रिप्ट ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई है। ये सुन रहे थे। आपको रामायण, महाभारत और बाकी अलग अलग ग्रंथ वेद जितने भी हैं उनके बारे में अच्छा, ये इंफॉर्मेशन किस मिलेगी। लैंग्वेज में लिखी हुई है ये? देवनागरी। अच्छा, देवनागरी में ये कितने साल पुरानी है वैसे? ये तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता। I will There is a colophon part also which is giving the metadata of that manuscript. So our issue is that Gyan Bharatam is providing the manuscript data because we are getting the text out of that manuscript and training the LLM model for the conversational. I will train like Sushma Kameka is there. This is the metadata of the colophon. Sir, you can see like 1647 CE. Okay. We have POCs from companies which gives me a particular application. Be careful with my phone. The grip is wrong. This robot only picked the things and put it here to there. So in an assembly line you have certain operations. We are working on one project with Audi where a mirror door, Audi door comes. You have to pick the mirror and go assemble it. So pick and place, any operation is just a combination of pick, orient and place. So once we have mastered a simple pick and place, we can put it in any application. So it tested properly, or it currently in the testing phase? So what you see has been deployed at places, but like I said, project with Audi, so that's a different application. So few modifications per side, and then we will ship it. How much Depending on the weight? How much weight he this can carry? Can do 5 kg as per now, but we can modify the arms as per requirement. So for this application, we don't need heavy lifting. Small things, sir. Okay.
थैंक यू। एआई समिट में 30 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और 300 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स हैं यहाँ पर। अनुपम की एंट्री में जा रहा हूँ मैं। अनुपम में एंट्री कर ली है, अब यहाँ से चेकिंग हो रही है और अंदर जा रहा तो हूँ। ये थी भारत मंडपम की एंट्री और ये कंप्लीट हॉल है यहाँ पे, और यहाँ राइट साइड में बहुत अच्छा आर्ट बना हुआ है कलरफुल। तो भारत मंडपम में एंट्री करने के बाद मैंने देखा यहाँ पे अलग अलग मीटिंग रूम्स हैं, बड़े बड़े हॉल्स हैं जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे एक सेशन हो रहा था एआई का, जो मैंने थोड़ी देर के लिए अटेंड किया। आप देखेंगे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे और ट्रेनर्स जो अलग अलग कंपनीज के हैं। उसके बाद मैं आगे चला एक और हॉल में, वहाँ पे भी सेशंस हो रहे थे और इस सेशन में एआई के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज और फ्यूचर सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसके आंसर्स भी दे रहे थे। यहाँ में मीडिया और स्टूडेंट्स और सर्विस मैंस काफ़ी लोग यहाँ पे उनकी कैटेगरीज थी जो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। वाले फ्लोर में जा रहा हूँ। मंडपम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। भारत मंडपम बहुत अच्छा बना हुआ है। तो जैसे आप न्यूज़ चैनल्स में देखते होंगे कि मोदी जी बैठे हैं और काफ़ी लोग सामने बैठे हैं भारत मंडपम में, अटेंड कर रहे हैं उनका सेमिनार, उनके सेशंस। तो ये देखिए इसी तरह का हॉल है ये। यहाँ पे मोदी जी जैसे सेमिनार अटेंड करते हैं, स्पीच देते हैं और डेलीगेट्स यहीं पे आते हैं। ये देखिए एआई इम्पैक्ट का इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पे बैकग्राउंड में, और लोग सेशन अटेंड करने के लिए वेट करें। तो सेशन स्टार्ट होने वाला है। भारत मंडपम के अंदर बहुत अच्छा अलग अलग तरह के आर्ट्स रखे हुए हैं। तो आर्ट आप देखेंगे यहाँ पे ऊँट है, हाथी है, ये काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी एंटीक हैं। तो अगर आप वास देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये बुद्धा की मूर्ति है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है स्क्रीन में। और अगर हम आगे चलते हैं तो ये देखिए कांसे की चीज़ें हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। तो हमारी जो इंडिया की धरोहर चीज़ें हैं उसके बारे में भी यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है। उस आर्ट को यहाँ पे रखा गया है। ये मैं आया हूँ फर्स्ट फ्लोर में। यहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी है और मीडिया का भी कवरेज हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर में पूरा मीटिंग रूम्स हैं जहाँ पे सेमिनार्स हो रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर में भी है, और फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पे आपको कुछ ऐसे सेंटर्स मिलेंगे जहाँ फॉरेन डेलीगेट्स अंदर मीटिंग ले रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर की जगह है जहाँ पे आप देखेंगे एक हैंगिंग बहुत में अच्छा पूरी बना birds हुआ है। लगी हुई है। ये स्विमिंग पूल है क्या? बर्ड्स ऐसा लगी हैं और लगता बहुत अच्छा ये एरिया है। नीचे पानी नहीं है लेकिन पूरा एक ऐसा स्पेस बना के रखी है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026। ये यहाँ पे किसी ने चार्जर लगा लिया तो उसको मना कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये था भारत मंडपम का छोटा सा टूर जहाँ मोदी जी अपनी मीटिंग्स लेते हैं। अब यहाँ से चलते हैं हॉल नंबर 1 से लेके 6 तक की तरफ। यहाँ पे रास्ते में आप देखेंगे सोफ़े लगे हुए हैं, बैठने के सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, जो काफ़ी अच्छा है, लोगों को रिलैक्स करने के लिए मिलता है। यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके फ्लैग्स लगे हुए हैं। तो अब मैं एंटर कर रहा हूँ हॉल नंबर 1 के अंदर। सबसे पहले मुझे डेल की कंपनी का पूरा एग्जीबिटर बूथ दिखा है। यहाँ पे डेल के सारे एआई इक्विपमेंट्स और एआई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे मुझे एआई की जितनी अभी तक इनोवेशंस हैं उसके स्मॉल बूथ्स दिखें, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि डेल ने क्या क्या अचीव किया है अभी तक और फ्यूचर क्या है। और भी कंपनीज़ यहाँ पे दिखी हैं मुझे। तो 1 बाय 1 मैं अलग अलग कंपनीज़ के अंदर गया हूँ और उनके बूथ्स में जाके चेक किया कि किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हो रही हैं यहाँ पे। जैसे ये TCG डिजिटल कंपनी है। ये E&Y का बूथ है जो बहुत बड़ी कंपनी है, MNC कंपनी है। यहाँ पे रोबोट्स भी हैं इनके, और छोटा सा सेमिनार्स भी हो रहा है जो यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स और सर्विस क्लास जो भी हैं वो इनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और ये उसके बारे में डिटेल्स बता रहे हैं जो हमारी उनकी टेक्नोलॉजीज़ हैं। E&Y ने डेमोस्ट्रेशन के लिए एक रोबोट भी रखा हुआ है। देखिए ये अभी चल नहीं रहा है लेकिन। इसके बाद मैं आया हूँ एडोबी के बूथ में, जहाँ पे प्रिंट आउट्स आपको मिल रहे हैं लेकिन वो गिफ्ट में मिलेंगे आपको।
और आगे अभी चल रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग और भी सॉल्यूशंस कंपनी हैं, जैसे डेलॉइट में आपको उनके एआई के फीचर्स, स्टेक होल्डर एश्योरेंस के बारे में बता रहे हैं। तो मैंने इनसे बात की और इन्होंने मुझे भी बताया कि किस तरह से स्टेक होल्डर एश्योरेंस में ये हेल्प करेंगे आईटी सेक्टर में। इनके एआई टूल टैक्स इनोवेशन में भी हेल्प करते हैं, जो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स, आपकी सैलरी स्लिप और आपके एक्सपेंस से लेके आपका टैक्स जनरेट कर देगा और फाइल भी कर देगा। तो काफ़ी अच्छा टूल मुझे ये लगा, इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। So basically, sir, we are value-added institution where we provide end-to-end solutions from all the major vendors here are in the industry. For example, you require server storage, so we have connected with Dell, SPL, Lenovo, Hitachi. Whether you require cloud, so we have AWS, Azure, X5. Even if you require solution where there is both of them. So both of them are the similar. So once we will be consulting you as well as we are giving you the products. Plus we are the primary distributors in the multiple like clouds as well as so I think we are giving you a better deal as compared to other OEMs. So you have support team also, cloud support team Support teams, automation. for configuration and everything. So automation and things like that. If you want better information about the cloud and automation, my senior Prashant is there. You can guide you. From that, we ये रेज़र पे का बूथ है, जहाँ की पेमेंट प्रोसेस में सबसे आगे कंपनी है। और रेज़र पे में यहाँ पे अभी डेमोस्ट्रेशन चल रहा है। इसके बाद मैं आया हूँ कैफ़ेटेरिया में। यहाँ पे टी, कॉफ़ी, सैंडविचेस अगर आपको लेने हो तो यहाँ पे इंडियानो के स्टॉल्स हैं। तो अब हॉल नंबर 1 ग्राउंड फ्लोर घूमने के बाद फर्स्ट फ्लोर में आया हूँ, तो यहाँ पता चला मीडिया का सेंटर है फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में। और यहाँ से मुझे भारत मंडपम का पूरा व्यू दिख रहा है। आप देखेंगे नटराज जी की मूर्ति है और यहाँ पे फ्लैग्स लगे हुए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, और ये पूरा रोप बना हुआ है ऊपर जाने के लिए, जो कि VIP एंट्री है। अब मैंने हॉल नंबर 2 में एंट्री की थी। एंट्री करते साथ मुझे सर्वम दिखा, जो कि इंडिया का AI टूल है, जो कि चैट GPT की तरह है, और अब ये लॉन्च भी हो चुका है। इसके को-फाउंडर है डॉक्टर विवेक एंड प्रत्यूष। ये AI इंडिया का पूरा पवेलियन है, और यहाँ पे AI में मेडिकल किस तरह हेल्प कर सकता है और क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ AI में अब इम्प्रूव हो गई है। जैसे आइज़ के बारे में बता रहे हैं, तो विद इन सेकेंड्स ये आई के बारे में जो भी प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट कर लेगी। कुछ एक्सरे मशीन्स हैं जो स्मॉल हैं बहुत, लेकिन AI में इतनी एडवांस है जो कि पूरा का पूरा स्कैन करके आपकी पूरी रिपोर्ट्स दे देंगी कुछ मिनट और कुछ सेकंड्स में। तो AI काफ़ी एडवांस हो चुका है। अब सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं टीवी में, तुरंत आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो अलग अलग लैंग्वेज में चेंज करता है AI से। किसानों को AI कैसे हेल्प करेगा इसमें ये बताया गया है। AI में सारी डिटेल्स आ जाती है, बस फ़ोटो खींच दीजिए। ये AI का पार्किंग कंट्रोल है, पूरे गाड़ी की पार्किंग AI से कंट्रोल होती है। ये AI का रोबोट है जो एक प्लेस से दूसरी जगह एक प्रोडक्ट को उठा के रखता है। देखिए कितने आराम से इसने प्रोडक्ट को उठाया और नीचे रखा। ये इंडिया का फर्स्ट रोबोट डॉग है, जो इसका नाम है मीट ट्रैकर, और ये इंडिया में ही बिल्ड हुआ है। ये स्टेयर्स और पहाड़ चढ़ने के लिए भी सक्षम है। इसके बाद इस कंपनी के बूथ में कैलेंडर्स और डायरीज मिल रही थी फ्री में, तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। इसके बाद आया हूँ मैं इस बूथ पे। यहाँ पे अपनी आप फ़ोटो जनरेट कर सकते हैं AI रिलेटेड। AI से जनरेट होगी, आप इसमें ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज जनरेट होगी। देखिए बड़ी इजी स्टेप्स हैं और थोड़ी देर में मेरी फ़ोटो जनरेट हो जाएगी इसमें।
अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब और जो कि मैंने आपको दिखाया और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि मैं इस तरह के वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं के लिए एआई से अपलोड करूँ। एआई ऑपरेशन, अगर मैं एआई की बात करूं कि मेडिकल में किस तरह से ये हेल्प कर रहा है, तो ये एआई टेक्नोलॉजी का रोबोट है जो कि आपकी एग्जिस्टिंग मशीन में जुड़ के ही ये हेल्प करेगा और एआई टेक्नोलॉजी से ट्रीटमेंट करेगा। तो ये खुद सारा ट्रीटमेंट करेगा आपकी पहले से रखी हुई एग्जिस्टिंग मशीन्स में। तो आपकी पुरानी मशीन्स भी वैसी की वैसी रहेगी, तो वो बेकार नहीं होगी। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है एआई की जो फिट हो जाएगी आपकी एग्जिस्टिंग मशीन में। ये विप्रो की एआई टेक्नोलॉजी है हेल्थ केयर सेक्टर में, जो कि ऑपरेशन भी कर सकती है। यहाँ पे एआई की हेल्प से गेमिंग भी हो रही है। तो देखेंगे एक साथ 4 लोग एक साथ खेल रहे हैं एक ही ट्रैक में F1 रेस, और ये पूरा का पूरा ट्रैक है। ये फ्यूचर का क्वांटम कंप्यूटर है, देखिए कितना बड़ा है। काफ़ी एआई से भी बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है ये। ये मेटा का बूथ है जहाँ पे गॉगल्स मिल रहे हैं स्पेक्स एआई रिलेटेड, जिसमें ब्लूटूथ स्पीकर, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो इसमें कैमरे से सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ब्रदर ये एआई मैप्ड है इसके साथ? AI integrated है, yes. ओके, इसमें क्या क्या होता है? ओनली कैमरा है, फिल्म में उसका कैमरा अनप्राइसी है, तो जब भी आप कैमरा फोटो वगैरह लोगे, कैमरा एक्सेस करोगे तो दिखेगा। एंड इट हैज़ 2 स्पीकर्स, 5 mics, so it can also connect to your WhatsApp, Facebook, Instagram. So it's an advanced version. Like actually, I saw in the lens card there is only there is a Bluetooth only there. You can ask for suggestions on it, and you can just say, "Hey Meta," and take suggestions from it. A lot of things. Also visible, also there? This No visibility, only the listening part. Just the AI part, and you can connect it to your phone, so you can do video calls, you can attend your calls, you can save, and you can take photos, take videos. The video quality is 3K Ultra HD, so the video quality is great. A video call you can use the rear camera, not front camera. It's a front camera. Only rear. That The demo game here is the same. product already launched or? It's launched. You can get it to the website. Our website. In India? Yes. Meta website. You can also get prescribed lens from -6 to +4. -6 to +4. Okay. ये कार है जिसमें एआई टेक्नोलॉजी के एडवांस फीचर्स अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे लिंक्डइन के भी बूथ पे गया और यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली जो लिंक्डइन में यूज़ करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी एआई यूज़ कर रहे हैं अब लिंक्डइन। On this particular product, which is the hiring assistant. ये इंटेल एआई है। यहाँ पे बता रहे हैं कि एआई इन गेमिंग, कैसे गेमिंग में एआई हेल्प कर रहा है, कहाँ कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ एआई की इम्प्लीमेंट हो रही है गेमिंग के अंदर, और जो यूट्यूबर्स हैं वो किस तरह से हेल्प ले सकते हैं एआई का अपने वीडियोस बनाने के लिए। यहाँ पे बिग यूपीएस, बैटरीज, डेटा सेंटर्स, तो ये कंप्लीट पूरा पैकेज है। आप देखेंगे यहाँ पे सारे के सारे सर्वर्स जो लगे हुए हैं, यूपीएस, सब यहाँ पे डेटा सेंटर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। डिजिटल सक्सेस एआई रेडी डेटा सेंटर, पीवीडीएन, एजेंटिक एआई। ये अल्ट्रा वायलेट एआई एनेबल्ड बाइक।
अब मैं एंटर करने जा रहा हूँ इंडिया की लार्जेस्ट कॉलिंग नेटवर्क कंपनी एयरटेल के अंदर। तो एआई में ये भी काफ़ी आगे है और एयरटेल काफ़ी अपना नाम आगे कर रही है अब एआई पावर टेक्नोलॉजी में, जिसका यूज़ ये अपने नेटवर्क को एनहांस करने के लिए करेगी। जैसे मैंने बताया अभी मेटा में आजकल स्पेक्स और गॉगल्स में भी एआई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। आपके ब्लूटूथ, वीडियो कॉल्स, व्हाट्सअप, फेसबुक सब कुछ आ सकता है आपके गॉगल स्पेक्स में। तो ये टेक्नोलॉजी जियो फ्रेम्स के अंदर भी आ गई है। तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है इसका डेमो लेने की। जियो के सेक्शन में मुझे एक काफ़ी अच्छी चीज़ दिखी जिसमें होलोग्राम कृष्ण जी का बन के आ रहा है। इसमें आप कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे तो कृष्ण जी अपनी आवाज़ में उसका आंसर देंगे और ये टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है। देखिए कृष्ण जी का पूरा रूप जनरेट होके आ गया है। ये यहाँ पे सेंटर पे मंगल यान के बारे में बताया गया है, जब वो चंद्रमा में उसने कदम रखा था। जैसे ग्लास के अंदर कृष्ण जी का होलोग्राम दिखा था, वैसे ही मुझे अर्जुन का होलोग्राम दिखा और मैंने इसमें ट्राई भी किया कि ये आंसर कैसे देता है। तो आपको दिखाता हूँ, चलिए। इस एआई से मैंने प्रश्न किया है और ये मुझे संस्कृत और हिंदी में दोनों में अनुवाद करके बताएगा। मनुष्य के जीवन में अनेक मार्ग होते हैं, किंतु यदि आपने अपने लिए लक्ष्य का चुनाव कर लिया है तो उसी पथ पर चले जो आपको गंतव्य तक पहुंचाए। अन्य मार्ग आपको नहीं कर सकते। अन्यथा मैं स्वयं अपने हाथों से अपने गर्भ को समाप्त कर दूंगी। ये एक एआई रोबोट है जो कि प्रोडक्ट को यहाँ से उठा के वहाँ रखता है। चिप्स का पैकेट उठाने के लिए रखा हुआ है, दे भी नहीं रहा लेकिन सिर्फ उठा के रखता है बस। यार ये चिप्स का पैकेट खिलाएगा भी या नहीं खिलाएगा? खिलाएगा नहीं यार, गलत बात है यार। मतलब सबको चिप्स तो खिलानी चाहिए था। मतलब इसकी खुद की वैल्यू 2-3 करोड़ से ज़्यादा होगी, ठीक है? उसके बाद ये चिप्स का पैकेट भी नहीं खिलाता। अब मैं आ गया हूँ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और पॉपुलर कंपनी गूगल में। ये गूगल का एग्जीबिटर्स हॉल है, पूरा बूथ है। आप देखेंगे यहाँ पे गूगल्स के एआई प्रोडक्ट्स है, गूगल जेमिनाई, गूगल एआई क्रिकेट कोच। गूगल के जितने भी एआई के प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे एक ही जगह पे आपको देख सकते हैं। यहाँ पे क्रिकेट खेलने को भी मिलेगा, बट आपको एक ही बॉल मिलेगी और काफ़ी वेट करना पड़ सकता है। मैंने काफ़ी देर वेट किया बट काफ़ी लंबा क्यू था तो मैं नहीं खेल पाया ये। इसके बाद मैं आया हूँ सपोर्टिंग इंडिया एआई एम्बिशन। इस एआई टूल में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको नेचर से कनेक्ट करने के बाद आपकी एक इमेज जनरेट करेंगे। तो मैंने भी इसमें ट्राई की और मेरी काफ़ी अच्छी इमेज जनरेट हुई है। चलिए मैं स्टेप्स दिखाता हूँ आपको। आई सॉ दिस इन दी टुडेज न्यूज़ चैनल। There will be some questions. You have to answer that. That will be your prompt. Okay, yes. Yeah. Please answer. Mountain valley, desert, rivers and lakes. Healthcare, energy, education, energy and climate. Mental, builder, mental. Which is the best one? I think Pichwai, Rajasthan or Madhubani, Bihar. Name in Hindi comes. Yeah.
तो मैंने सबमिट कर दिया, मेरी फ़ोटो जनरेट हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। It connect with the your thinking and culture, right? In the news channel I heard that कि आपके जो आंसर से कनेक्ट करता है कि आप किस एनवायरनमेंट को पसंद करते हैं, लाइक दिस काइंड ऑफ। आई थॉट दिस इज रिलेटेड विद एस्ट्रोलॉजी, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो मेरी इमेज जनरेट हो रही है, मुझे QR कोड स्कैन करके और फ़ोटो को डाउनलोड करना है। ये देखिए जनरेट हो गया। हॉल नंबर 1 के बाद हॉल नंबर 2 से जुड़े हुए हैं हॉल नंबर 5 तक के हॉल्स, और यहाँ पे एक के बाद एक हॉल्स के अंदर आप अंदर ही अंदर जा सकते हैं। मैं यहाँ पे सारे AI के जितने भी बूथ्स थे वहाँ पे गया, नॉलेज पे, और जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सका तो मैंने कलेक्ट की और आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। यह है वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेटवर्किंग कंपनी रेड हार्ट, सिस्को। इसके बाद मैं प्लेवो में आया जो कस्टमर सपोर्ट में डील करती है। इसके बाद मैं एक रोबोट से मिला जो कि वॉइस कमांड पे चलता है, अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो उसके हिसाब से वो एक्शन करता है। ये चल रहा है, डांस कर रहा है। अच्छा, डांस भी करता है, डांस बोलो तो। अच्छा, जंप करके देखा, जंप कैन नॉट जंप। ओके, मैं एक कोरियन हार्ट बनाना। अच्छा, वॉक Walk. वॉक कर रहे हैं। Die. अच्छा, put your right hand up. Okay, stop. उसे उठा के ले जाओ। Stop. Put your right hand up. Yes, wave it. Yes, great. 1 to 5 हॉल घूमने के बाद हॉल नंबर 6 में मैं एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टडीज़, यूनिवर्सिटी रिलेटेड, स्कूल रिलेटेड AI टेक्नोलॉजीज़ के बूथ्स हैं। तो AI समिट 2026 के न्यूज़ में आपने सुना होगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम, जहाँ पे AI रोबोट उन्होंने एक प्रेजेंट किया है, इंडिया का रोबोट बता के कि उनकी यूनिवर्सिटी ने बिल्ड किया है, और जबकि ये चाइनीज़ कंपनी यूनिट्री ने डेवलप किया है। इस वजह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को AI समिट से बैन कर दिया गया। मैं गूगल के बूथ में गया तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, और यहाँ पर मुझे मौका मिला गूगल के CEO सुंदर पिचई से मिलने का, और बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं, ये बच्चों से बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आया था समिट को अटेंड करने, बट मैंने भीड़ देखी और यहाँ पे मुझे पता चला सुंदर पिचई आ रहे हैं, तो मैंने उनको देखने के लिए अपनी लाइन लगा ली और बिल्कुल आगे से, सामने से मैंने उनको देखा, और काफ़ी अच्छी फिज़िक है और काफ़ी अच्छा नेचर है। उन्होंने काफ़ी यहाँ पे जो लोग खड़े थे उनके साथ कनेक्ट किया। AI समिट के कंप्लीट वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे AI रोबोट्स भी हैं जो गेम्स में काम आते हैं, छोटे छोटे टॉयज़ की तरह। तो देखिए काफ़ी अच्छे हैं, एक्साइटिंग है, और मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने यहाँ पे डांसिंग रोबोट भी देखा और डॉग वाला रोबोट देखा, और इक्विपमेंट, मतलब अलग अलग तरह के रोबोट देखे। ये देखिए, ये रोबोट डांस करता है और म्यूज़िक किसी भी तरह का हो, अपने अकॉर्डिंग वो स्टेप्स बना लेता और डांस करता है। ये है सारे एग्जिबिटर्स की लिस्ट, और ये मैप है जो कि मैंने कैप्चर किया अपने कैमरे में। इसकी आप डिटेल्स देख सकते हैं कि कितने एग्जिबिटर्स और कहाँ कहाँ हैं। यहाँ पे यहाँ डिटेल्स लगी हुई है इसकी, अलग अलग कंट्रीज़ के। टाइम टू गो। गेट नंबर 10 से हम नहीं जा सकते थे क्योंकि PM मोदी आ रहे हैं, तो हम गेट नंबर 4 से जाने को बोला। ये बाहर का एग्ज़िट है। तो ये था AI इम्पैक्ट 2026 का मेरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।